Hi, good morning, Kem Cho. All good? Welcome back to the chapter number 14 Semiconductor Devices. Clear? So, last lecture we have seen about the types of rectifiers, that is half wave and full wave. Okay? Now, let us go through in detail. This is my second lecture of the chapter Semiconductor Devices. Let us go through in detail half wave rectifier and full wave rectifier. This rectifier now will use PN junction diode. Okay. Now connection is very important. The flow of current is also very important, and how the rectifier will work is very important. Now in the first type, in half wave rectifier, as the name suggests, it will rectify, that is it will convert only half part of the wave, that is half part of the AC current to DC current, and remaining half part will not be rectified. Remaining half part of the wave will not be rectified. Clear? Now how it works, let us see. This is the circuit diagram. This is input voltage 230 volt and 50 hertz AC current. This is transformer as we have seen earlier. This is PN junction diode and this is output. This is input and this is output. From here we can take output. Okay? Now how it works? Understand. Now AC cycle, alternate current is working like this. This is first input, first half cycle, positive, second half cycle, negative. That means current direction will be negative. So in first half cycle the current will be positive, and in the next cycle current will be negative. That means it goes in the reverse direction. In first cycle it will goes in the forward direction, then it changes its direction. So current will change its direction every half cycle. Current changes its direction in every half cycle. This is very important. Now listen to me carefully. In first half cycle, this is input, this is AC cycle, this is AC, and this is input, and this is what we are getting DC. Now listen to me very carefully. This is diode D. Current is moving in the first positive half cycle. Current is moving in this direction, A to B. Okay, current is moving in A to B direction. Getting it? Current is moving in A to B direction. This way, A to B. Now as the current is moving, this is पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, है ना. डायोड का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है. तो करंट भी यहाँ से जा रहा है. तो पी टाइप इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, एन टाइप इज कनेक्टेड टू नेगेटिव. ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव गिनता है. ठीक है. तो पॉजिटिव पी टाइप, नेगेटिव एन टाइप से कनेक्टेड, मतलब ये फॉरवर्ड बायस है. व्हेन पी टाइप इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, एन टाइप इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, the PN junction diode works as a forward bias diode and forward bias diode, and we get the output. तो यहाँ पे ये forward bias बनेगा और यहाँ से अपने को इसका output मिलेगा. This AC is converted to DC. नेक्स्ट साइकिल में ये करंट अपना डायरेक्शन उल्टा कर दिया. करंट मूव्स इन उल्टा डायरेक्शन. दिस विल फ्लो इन रिवर्स डायरेक्शन. अभी समझना, यहाँ से चालू किया, नेगेटिव टर्मिनल है, ये उल्टा हो जाएगा, करंट उल्टा चले जाएगा. अभी ये तेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में जाएगा. पहले किधर से जा रहा था, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा था. अभी किधर से किधर जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है. बराबर. मतलब ये कौन सा बायस हो गया, ये कौन सा बायस हो गया, रिवर्स बायस हो गया. तो रिवर्स बायस में क्या होगा, पी टाइप इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, एन टाइप इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल. करेक्ट है. तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस. और रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन डायोड कोई भी आउटपुट देता नहीं है, कोई भी आउटपुट देता नहीं है. तो अपने को कोई भी आउटपुट यहाँ पे नहीं मिलेगा. विल नॉट गेट एनी आउटपुट फॉर दिस पर्टिकुलर साइकिल. सो इन फर्स्ट हाफ साइकिल, व्हेन द फर्स्ट हाफ साइकिल इज कंप्लीटेड, वी ओनली गेट द रेक्टिफाइड आउटपुट ऑफ हाफ वेव. The half wave gets empty. Why? Because this diode will be in reverse bias, and in reverse bias we will not get any output. So in every cycle we will get, in this cycle we have got half, in this cycle we have got half, in every cycle we will got half wave rectified, and that is why it is called as
हाफ वेव रेक्टिफायर। बराबर है। अभी इसमें अपन दे रहे हैं फुल वेव, पूरा एक वेव अपन इनपुट दे रहे हैं, लेकिन अपने को मिल रहा है हाफ वेव। ये मतलब क्या, मैं 100 रुपया दे रहा हूँ लेकिन मुझे 50 रुपये ही रिटर्न आ रहा है। 100 रुपये का सामान खरीदा लेकिन वो मुझे 100 रुपये का सामान के बदले मुझे 50 रुपये का ही सामान दे रहा है। तो ये नुकसान है कि फ़ायदा है? ऑब्वियसली नुकसान है। अगर मैं 100 रुपया दे रहा हूँ तो मुझे 100 रुपये का सामान भी मिलना चाहिए। तो ये हाफ वेव में क्या होगा, 100 रुपया दे रहे हैं लेकिन 50 रुपये का सामान दे रहे हैं, तो ये नुकसान वाला सौदा है, तो ये यूज़ नहीं करेंगे अपन। आगे बढ़ते हैं। अपग्रेडेड वर्जन क्या है इसका? इसका अपग्रेडेड वर्जन है फुल वेव रेक्टिफायर, जिसमें पूरे का पूरा वेव रेक्टिफाई होके मिलेगा। कैसे? इसमें सिर्फ एक ही डायोड यूज कर रहे थे, इसमें हम लोग 2 डायोड यूज करेंगे, डायोड D1 एंड डायोड D2। डायोड D1 एंड डायोड D2। एक फर्क आपको क्लियर दिखेगा कि भाई 2 डायोड यूज करेंगे और 2 डायोड किस तरीके से काम करेंगे समझना। पहले साइकिल में, ये पॉजिटिव साइकिल में करंट इस तरीके से जाएगा और यहाँ पे ये अगर यहाँ पे इस तरीके से जा रहा है तो यहाँ पे इस तरीके से आएगा, समझ रहे ना? तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, मतलब पहले साइकिल में ये फॉरवर्ड बायस हुआ और पहले साइकिल में ये रिवर्स बायस हुआ। जब करंट A2 भी जा रहा है तो डायोड D1 विल बी फॉरवर्ड बायस एंड डायोड D2 विल बी रिवर्स बायस। क्यों? क्योंकि यहाँ से एंट्री जो पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ से एंट्री नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब ये फॉरवर्ड बायस है और ये रिवर्स बायस है। मतलब पहले हाफ साइकिल में डायोड D1 जो है वो फॉरवर्ड बायस एक्ट करेगा, डायोड D2 है जो रिवर्स बायस एक्ट करेगा। आउटपुट कौन देगा? आउटपुट डायोड D1 देगा, जिससे आउटपुट मिलेगा। तो ये जो वेव है वो रेक्टिफाई होके यहाँ पे मिल गई। ये किसने किया? रेक्टिफाई डायोड D1 ने। D2 ने कोई रेक्टिफाइड आउटपुट किया नहीं है, कोई भी रेक्टिफाई आउटपुट दिया नहीं है। नेक्स्ट साइकिल में जैसे करंट रिवर्स हो जाएगा, करंट विल रिवर्स द डायरेक्शन, तो ये ऐसे जाएगा करंट। अभी क्या होगा देखो, ये पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ और ये नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, ये पॉजिटिव से नेगेटिव और ये नेगेटिव से पॉजिटिव। तो सेकेंड साइकिल मतलब फर्स्ट साइकिल के सेकेंड पार्ट में ये फॉरवर्ड बना और ये रिवर्स बना। डायोड D2 will be now act as a forward bias, डायोड D1 will now act as a reversed bias। सो अभी क्या होगा, जैसे करंट उल्टा जाएगा, ये वाले इसकी बात कर रहा हूँ, डायोड D2 फॉरवर्ड बायस के तरीके से काम करेगा, डायोड D1 रिवर्स तरीके से काम करेगा। तो आउटपुट कौन दे रहा है? अभी आउटपुट अपने को डायोड D2 देगा, डायोड D1 कोई भी आउटपुट देगा नहीं। तो ये क्या होगा, ये आउटपुट मिल गया इसका भी। इसने ये आउटपुट किसने दिया? D2 ने। ये आउटपुट किसने दिया? D1 ने। तो अभी ये पूरे साइकिल में दोनों पार्ट अपने को रेक्टिफाई होके मिले, पूरा वेव रेक्टिफाई होके मिला, तो अपन बोलेंगे इसको फुल वेव रेक्टिफाई। सिमिलरली ये भी यहाँ पे D1 फॉरवर्ड होगा, D2 रिवर्स होगा, रेक्टिफाई आउटपुट मिलेगा। यहाँ पे D2 फॉरवर्ड होगा, D1 रिवर्स होगा, रेक्टिफाई होके मिल जाएगा। सो दिस इज फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस का कंसेप्ट बिकॉज ऑफ 2 डायोड्स। क्लियर? आज के लेक्चर में अपन ने देखा हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर क्या है और इसके आउटपुट वेव फॉर्म्स क्या होंगे। वापस एक बार पूरा गो थ्रू करना, नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे बढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।